वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम तथा चर्नी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातें पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और इन पर विचार किया करते थे। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए डूब गए। 8 दिन बाद बालक के उठने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया। प्रभु का प्रचार। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी पवित्र जुबली वर्ष में हैं। हम अपने जीवन में दिव्य करुणा का अनुभव करें ताकि अपने भाई एवं बहनों के प्रति हम भी करुणा प्रकट कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
Your Lordship, Father Vicar General, Sister Provincials, Father Rector, and all my dear fathers, sisters, and brothers. On behalf of Gumla Diocese, I heartily welcome each and everyone present here for this Christmas gathering. We know Christmas is a time for joy, love, and togetherness. Just a few days ago, we have celebrated the birth of Jesus, and also we have celebrated the feast of Holy Family. And on that great day, we have inaugurated the Jubilee year of 2025. जन्म है राजा चलो चले बेतलहम में सरनी में लेना गरीबों के सारे घर में आनंद भरा संदेश सुनाने दूतों की सेना हंस मनाने शांति जगत में चलो चले बेतलहम में जन्म है राजा चलो चले बेतलहम में सरनी में लेटा गरीबों के खुशहाल घर में मानव respected provincials, rectors, local superiors, dear fathers, brothers, and my dear sisters. A very good morning to you all. On behalf of entire Gumla Diocese, I have the pleasure to wish you a very happy Christmas and happy New Year 2025 and welcome you all for this Christmas gathering. Last year, during the month of September, when I was called to meet Pope Francis as a new bishop, I conveyed the greetings of all the priests, religious and faithful of Gumla Diocese. In exchange, he also sends his greetings, which I impart on all of you. After that, it is just and fitting to give thanks to God for year 2024, which has just passed. We thank God for all the gifts He has showered upon us during this past year. Let's give thanks to God for all the good and bad experiences we had. He knows our needs and necessities, and accordingly, He provides what is best for us. In this coming year, I wish all of you a very happy and prosperous New Year 2025.
May God shower His blessing to each one of us, so that this year may be the year of grace and blessing. This year is going to be a very special, because we are celebrating the jubilee of the coming of our Lord Jesus Christ. As Pope Francis says, we are pilgrims of hope. Let this year be the year of pilgrimage and prayer. This year is also going to be the year of hope. As St. Paul in his letter to the Romans says, the hope does not disappoint. Romans chapter 5, verse 5. Pope Francis, in the bull of indiction for the Jubilee year 2025, says, for everyone, may the Jubilee be a moment of genuine personal encounter with the Lord Jesus, the door of our salvation, whom the Church is charged to proclaim always, everywhere, and to all as our hope. New Year is also the year of taking strong resolutions and making projects for our life. Let's repair the things where we failed, and let us go ahead with new spirit and vigor. Dear fathers and sisters, today we want to express our gratitude to each one of you for rendering your service to the diocese. Without you, the diocese is incomplete. Diocese will not flourish. With your different charisms, you are like different colors of flowers who contribute to the beauty of the diocese. You are the pillars of the diocese. We appreciate your work and charism. We feel proud of you and your institution. You are our best collaborators. We acknowledge your contribution for the common mission of spreading the gospel of our Lord Jesus with different charisms and qualities. Dear fathers and sisters, we count on each one of you. No one should feel orphaned or deserted. Diocese is ready to take care of you. When you have problems and difficulties, do not hesitate to come and talk to Bishop or to our Bhejis. You are the power and strength of the diocese. In whole of Archdiocese, our Gumla diocese is the only diocese which is unique in itself. It is only because you are good, humble, obedient, cooperative, and submissive. We are all one, and we have to work for the greater glory of God. Ad Maior Gloriam Dei. I would like to conclude in the words of Pope Francis, written in his bull, Spes non confundit, number 25. The coming Jubilee
will thus be a holy year marked by the hope that does not fade, our hope in God. May it help us to recover the confident trust that we require in the church and in society, in our interpersonal relationships, in international relations, and in our task of promoting the dignity of all persons and respect for God's gift of creation. Thank you. Have a nice time. Enjoy the day. Thank you. Thanks to our Bishop for his enlightening and encouraging message of Christmas and New Year. And people say the time is very short, so we shall try to go as fast as we can. So now there will be sharing from each denaries. So we know, and you also speak, that Jesus was born in the eastern country. So we shall begin our sharing from the eastern zone. So I invite first of all to Konbe Namatoli Denari. So I invite at least one or two representatives that they may come and give some what to say message or sharing. करते हैं और वे एक ही दिन में 3-4 मिस्सा आज दौड़ेंगे। इसी कारण हम लोग कुनबी नवाटोली पारिश से केवल 2 ही आए हैं और सिस्टर्स 2 आए हुए हैं, हम लोग 4 हैं और डिनरी से बहुत लोग हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि और साल की भांति हमारे इस कुनबी नवाटोली पारिश में क्रिसमस और न्यू ईयर में जो फेथफुल लोग हैं हमारे बहुत संख्या में रहें और साथ ही साथ भिकारियट लेवल में डिनारी में हमने कुनबी नवाटोली पारिश में ही 1 दिन का। So all of you get up first. कम से कम 5 या 6 हज़ार आदमी थे इस बार, सर कम थे क्योंकि देहात एरिया है। फिर भी इतने बड़े क्षेत्र से एक साथ आना ये दिखाता है कि ख्रिस्तीय एकता कितना मजबूत है। और इसी को हमारे विधायक महोदय ने भी, सुसारन औरों ने भी इसको कबूल किया कि उनकी विजय हुई है, जीत हुई है। तो इसी ख्रिस्तीय एकता जो कमेटी का गठन किया गया है उसी के बदौलत उनकी जीत हुई है। तो उस दिन क्या क्या कार्यक्रम हुआ, ये गान भजन हुआ, कुछ भाषण उसन हुआ और बेजोड़ खान पान है ना। इतना बच गया कि आदमी लोग ढो के ले गए घर। मैं फादर जे श्रीकांत यीशु समाजी रांची प्रोविंस पल्ली के पल्ली पुरोहित हूँ और मुझे क्रिसमस के दौरान जिस तरह से आगमन दूर होता है, करीब 22 गांव है, टोले कस्बे हैं जहां हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं क्रिसमस की तैयारी के लिए, लेकिन ऐसा हम लोग के तरफ हाथियों का उत्पात था और इसलिए बहुत खतरे से हम लोग को भी जाना पड़ता था। शाम होते ही हम लोग जल्द वापस लौटते थे। लेकिन जिस तरह से क्रिसमस का जो जश्न था वो बहुत ही कहेंगे शानदार रहा, क्योंकि जो भी यहाँ उपस्थित हैं सबों को जय यीशु।
खुश जन्म पर्व और खुश नया साल। मैं करौंदा बेड़ा भिखारीगढ़ से आता हूँ। ये मेरा पहला सेलिब्रेशन था वहाँ और बहुत ही अच्छा लगा। लोगों की भक्ति भावना सचमुच में मुझे देखने को मिली और विशेष करके उस दिन 1 जनवरी को जबकि जुबली झंडा लोगों के बीच में घुमाया गया, बहुत कोई झंडे को छूने लगे, छू करके वे यीशु चुमा जैसा करने लगे। मुझे देख करके बहुत ही क्या बोलेंगे लोगों की भक्ति के प्रति मैं भी जाग उठा कि लोग इतने धर्मी हैं या तो भक्ति में आगे बढ़ गए हैं कि जैसे मैंने कहा यीशु के जन्म का जुबली झंडा है, वे इसके प्रति आदर और भाव दिखाने लगे। जन्म पर तो कहते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 3, कोई लेडीज नहीं आ रही है, इसलिए सिस्टर फिलोमिना आएंगी, जाके होंगी सिस्टर फिलोमिना। नहीं हाँ, तो जैसे फादर विलियम बोले करौंदा बेड़ा में मेरा पहला अनुभव, तो मेरा भी क्रिसमस और नया साल मनाया। तो मैं डर रहा था रात में कितना भीड़ होगी, क्या होगा, इसलिए मैंने प्रशासन को कह दिया था और पहले ही विश्वासियों को कह दिया था कि इधर उधर घुमा मत करो, पुलिस व्यवस्था पूरा है, अगर कुछ हो जाएगा तो हम जिम्मा नहीं लेंगे। इसलिए रात में कहीं कोई नहीं घुमा, बढ़िया से बैठा सुना और चले गए। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हाथी से हम लोग नहीं डरते भाई, हाँ विश्वास करो। तो हम विश्वास के, हाथी दूर दूर था नहीं था, वो किनारा रह गया। तो अच्छा था और मुझको उतना भी नहीं पता था कि इतना लोग वहाँ पर क्रिसमस में इकट्ठा होंगे। और फादर ने बोला कि होस्टिया कितना रखेंगे, तो फादर केवल बोले कि थोड़ा ही रखिएगा, तो हम लोग थोड़ा ही रखे। तो लोगों की संख्या इतनी भीड़ हो गई कि होस्टिया भी नहीं होने लगा। तो जाएंगे, उनको भी स्वागत करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि वे भी क्रिस्टोफर तिर्की टुकुटोली पल्ली का पल्ली पुरोहित हूँ और क्रिसमस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ही टूर मिस्सा शुरू हुआ, मेरे पल्ली में 16 टोले हैं, गांव हैं, और टूर मिस्सा में बोला गया था कि हर एक गांव में पाप स्वीकार होगा, इसलिए 6 बजे मिस्सा का समय रखा गया था। तो हम लोगों ने वहाँ करीब 5:30 बजे पहुंचकर आधा घंटा के लिए पाप स्वीकार सुना और प्राय सब गांव में वैसा ही हुआ था। फिर 21 तारीख को पूरे पल्ली के लिए हम लोग पाप स्वीकार की व्यवस्था किए थे और हमारे ओसीडी के फादर लोग वहाँ सहयोग दिए, 3 फादर और हम लोग 2 फादर, 5 फादर मिलके करीब 4 बजे से 6 बजे तक सभी लोगों का पाप स्वीकार सुना था। अंग्रेजी में एक छोटा सा शब्द है, कहते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। 24 दिसंबर गुमलापल्ली के सभी पुरोहित, धर्म बहने, सभी विश्वासी गण मिल करके रात्रि जागरण के लिए इकट्ठा हो गए कैथेड्रल के अंदर, भीतर बाहर नहीं, भीतर। और 10 बजे जागरण धर्म विधि शुरू हुई बड़ी धूमधाम के साथ और भक्ति पूर्वक। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी स्वागतम है। और मैं सोचता हूँ मझाटुली पल्ली और मझाटुली भिखारीगढ़ के अंदर
24 दिसंबर मध्यरात्रि में पवित्र मिस्सा पूजा जागरण संपन्न हुआ और इस पवित्र याग में किसी तरह की अनहोनी बातें नहीं हुई हैं और जहां तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैंने रैणी प्रशासन को सूचित किया था और सभी विश्वासियों से आगे सबसे पहले प्रशासन हमारे बीच में आए और आकर अपनी उपस्थिति देकर वहाँ के वातावरण को ख्रिस्तमय जन्म पर्व में हमारे डीन इसी चीज को बताने में बहुत अच्छे हैं। मैं बस साथ देने के लिए यहाँ आई साथ बगल में। तो जैसे बताए पर बहुत अच्छा से बीता। आध्यात्मिक तैयारियां अच्छी रही और हम लोग खुश थे कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अनुष्ठाता के रूप में इस बार मझाटोली में हमारे सेकंड बीजी उपस्थित थे। खुश जन्म पर्व और खुश नया साल। तो जन्म पर्व के बारे में हमारे डीन फादर और रजनी जी ने बताया और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ। शाम को हम लोग जब गिरजा के लिए चले गए मझाटोली पल्ली बलमंडा से और हवा चल रही है शंख नदी की ओर से सर 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 आवाज कर रहा है और दिल के अंदर तक ठंडा घुस रहा है और मैं सोच रहा था कि जन्म पर्व कब होगा और इसी बीच में अचानक जब तेज बड़े ठंड लगने लगी और यीशु ख्रिस्त का जन्म हो गया और हम लोग ग्लोरिया गाने लगे। और इसी के साथ जन्म पर्व हमारी पल्ली में हो गया, हमारी डेयरी में। बहुत धन्यवाद। और मेरा इस प्रकार जन्म पर्व का अनुभव और उससे पहले का अनुभव को मैं बताना चाहता हूं। और हम सबों का जन्म पर्व का तैयारी हम सबों ने आध्यात्मिक रूप से व्यक्तिगत और गांव में जा जाकर जैसे बहुतों ने बतलाए कि हम सबों का लोगों के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म पर्व को हमने मनाने के लिए और मनाया है। आग्रह करूंगा कि वे भी 1 या 2 प्रतिनिधि आकर थोड़ा सा अपना अनुभव को जय यीशु। मैं बनारी डिनरी से आता हूँ और बनारी डिनरी में 4 पारिश आते हैं और 4 पल्लियों की खूबियाँ है कि वहाँ हम लोग बहुत ख्रिस्ती लोग बहुत कम संख्या में हैं के बावजूद पर्व को कैसे मनाया जाता है, छोटे पर्व को बड़ा बनाने आता है। क्योंकि वहाँ जो गैर ख्रिस्ती हैं पर्व त्योहार में वे भी आते हैं और एक साथ हम लोग मिल जोरदार थोड़ा तालियां दे देते हैं। वहाँ से काफी संख्या में फादर लोग सिस्टर लोग आए हैं, सब उनको बहुत। तो आगमन समय में ही सर्वप्रथम बर्वे विखारियत में जो चैनपुर विखारियत में जो 8 पल्लियाँ हैं और इसके साथ साथ बर्वे एसोसिएशन बना हुआ है, इसलिए आगमन टूर शुरू करने के पहले सभी फादरों को रिकोलेक्शन के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि आगमन टूर करने के पहले स्वयं पुरोहितगण तैयार हो सके। उनके लिए एक मेला का रिकोलेक्शन रखा जाता है। उसके बाद में उसको और सफल मनाने के लिए इस बार ऑल चर्चेस लोगों का क्रिसमस गैदरिंग रखे थे। हम लोग धूमधाम से प्रभु यीशु का जन्मदिन को मनाए और हम लोग इस साल कुछ अलग ही करने, अलग मतलब कुछ नया करने के लिए कोशिश किए थे। और विशेष करके हम लोग आगमन टूर मिस्सा, हम लोग का पाली में 18 गांव है और 18 गांव को हम लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन 2 गांव को हम लोग मिस कर दिए।
जो सामने ही नजदीक वाले हैं, बचोरा बोलते हैं, और उनको हम लोग बारिश में ही कन्फेशन सुन करके हम लोग उसको कंप्लीट किए, आध्यात्मिक रूप से हम लोग तैयारी किए। और जैसे हम लोग ठंड भी बहुत इधर रहता है और मेरा पहली बार है इधर, तो हम लोग जैसे अंदर में क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन करते हैं मिस्सा बलिदान, इस पर हम लोग बाहर किए। आगे बढ़ेंगे नवाडी भिखारियत की ओर से, इसलिए नवाडी भिखारियत वाले आप लोग सभी को एक बार खड़े हो जाइए, एक बार धन्यवाद दे दीजिए तालियों से। तो आइए नवाडी भिखारी एकदम पश्चिम छत्तीसगढ़ बॉर्डर, डाल्टनगंज तहसील का भी बॉर्डर है, तो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है। और रजावल पारिस ही एक ऐसा पारिस है, हमको लगता है अभी तक वर्जिन है, अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं। रजावल पारिस सब मिला के 33 गांव है, लेकिन 19 गांव गिरजा 7 नहीं, हमको लगता है चमकेला चरनी ऊपर का तारा, टिम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, सब कर कोरा में का तारा, टिम 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 चमकेला, जोसेफ कर कोरा में का तारा, टिम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, मरियम कर कोरा में का तारा, टिम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। मैं प्रोविंशियल से आती हूँ। हम लोग जन्म पर्व के पहले अपने समुदाय में बात किए थे कि जन्म पर्व की तैयारी के लिए धर्म बहने फादरों के साथ गांव-गांव पर गांव मिसा के लिए जाएंगे। इसलिए हमारी जूनियर बहनें जो थी वो लोग फादरों के साथ गांव-गांव जाती थी, और शाम को मिसा होता था, इसलिए फादर लोग के साथ गई और वे अपने अनुभव बताए कि गांव में हम लोग मिसा के साथ साथ उनको संदेश, क्रिसमस संदेश देते थे। मैं गुमला स्कूल समुदाय से आती हूँ। हम लोग 22 सिस्टर्स हैं हमारे समुदाय में, स्कूल समुदाय उस लाइन में, लेकिन क्रिसमस के पहले ही एक हमारी सिस्टर चली गई, स्वर्ग चली गई। इसलिए थोड़ा तो दुख हुआ हम लोगों को, क्योंकि जस्ट क्रिसमस के पहले ही वो प्रभु की प्यारी हो गई। लेकिन हम लोगों के लिए एक हमारे लिए सांत्वना की बात रही कि उसका पवित्र मरण देख करके हम लोग बहुत खुश हुए। 22 तारीख शाम को ही उसका लास्ट अगोनी शुरू हो चुका था, और वो बार बार कह रही थी कि मुझे यीशु बुला रहा है, मुझे यीशु बुला रहा है। तो हम लोग शाम को ही 22 तारीख पहुंच गए हैं, उनको भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आए हैं, सब तालियों से उनका स्वागत करते हैं। तो हम लोग का कार्यक्रम चल ही रहा है, तो अभी सिस्टर आई हुई है वहाँ। जय यीशु, खुश नया साल। जय यीशु। मैं प्रोविंशियल कम्युनिटी से आती हूँ, और जैसे ही बोला गया कि उस लाइन से भी आएंगी, तो मैं सिस्टर मधुरा को बोली आप जाइए बता दीजिए, और उसने मुझे खींच करके लाया। तो अब मुझे भी बताना पड़ रहा है
और मैं अपने प्रोविंशियल कम्युनिटी की कुछ घटनाओं को बताना चाहती हूँ। जैसे ही आगमन शुरू हुआ, हमारा कम्युनिटी मीटिंग हुआ और हम क्या करेंगे आगमन में, इसका निर्णय सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग के सामने एकदम चींटी के रूप में मैं खड़ी है। हम बोलेंगे तो सच है, हम चींटी है। उसी में तो आप लोगों का प्रेरणा से, आप लोगों का प्रोत्साहन से हम यहाँ खड़ी है। हमारा बिशप स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहता है। वो एक बात तो बताया, डोज बढ़ा दो, प्रेम का डोज बढ़ा दो, सब तो प्रेम से ही सारी बीमारी दूर हो जाएगा। ये अनुभव मेरा दिल में हमेशा है। प्रेम का डोज बढ़ाने में बहुत अच्छा हो जाता है। इसी बीच में ये गुमला धर्म प्रांत के सर्दे बिशप लिनुस पिंगलेका, मैं आज क्रिसमस गैदरिंग के मौके पर हम सभी आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है और यहाँ सेंट इग्नासियस के फादरगण, डॉन बॉस्को के फादरगण और गुमला धर्म प्रांत के सभी पल्ली के पल्ली पुरोहित फादरगण, गुमला धर्म प्रांत के विकार जनरल मानवेल और फादर जेफरिन तिर्की, डॉन बॉस्को के सिस्टर, उर्सलाइन के सिस्टर, संतना के सिस्टर गण, आप सभी लोगों को आज के इस क्रिसमस गैदरिंग के मौके पर मेरी ओर से क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय यीशु। देखिए आप लोग के सामने देख सकते हैं। उसके बाद में अभी तो सबके लिए मिलेगा ही, अभी तो मात्र चलिए तालियां बजा देंगे। और हम सबों की ओर से और पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से आप सबों को और हम एक दूसरे को खुश जन्म पर्व और खुश नया साल। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर और आपके कामों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु और खुश नया साल। जय यीशु, खुश नया साल।